गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से 45 करेंगे और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं वो चैप्टर बना दूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन मेड अ ट्रिप ऑफ 480 kilometers in 9 hours. Some part of trip was covered at 45 kilometers per hour and the remaining at 60. Find the part of the trip covered by him at 60 kilometers per hour. Let the part of the trip okay, let the part of the trip at 45 kilometers per hour will be x and 60 kilometers per hour will be 480 minus x. ठीक है, so the part of the trip at 60. ठीक है, so the time taken is equal to what? X upon 45 hours. So total time taken is equal to so time taken at x kilometer, time taken at x kilometer is this, and time taken at 480 minus x kilometer is 480 minus x upon 60 hours. अब टोटल कितने हैं? 9 आवर्स है, तो क्या करेंगे हम? x अपॉन 45 प्लस 480 माइनस एक्स अपॉन 60 इज इक्वल टू वॉट? 9। तो ये 45 और 60 का हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 180 आ रहा है, तो ये होगा 4x प्लस 3 इंटू 48 माइनस एक्स अपॉन 180 इज इक्वल टू वॉट? 9। सो ये होगा 4x प्लस 1440 माइनस 3x अपॉन 180 इक्वल्स टू 9. So x plus 1440 upon 180 equals to 9. Okay. So x plus 1440 is equal to 9 into 180. So x plus 1440 is equal to 1620. सो x इक्वल्स टू 180 हुआ। ठीक है, सो एट 45 किलोमीटर पर आवर्स क्या होगा? 180 एंड एट 60 किलोमीटर्स तो क्या होगा? 300 kilometers. Okay. A motorist traveled from town A to town B at an average speed of this. On his return journey, his average speed was 60 kilometers. If the total time taken is this, find the distance between two towns. तो देखिए, let the distance between two towns be x किलोमीटर, राइट? तो स्पीड क्या है?
while going is 54 kilometer per hours, and time taken is equal to x अपॉन 54. ठीक है, फिर स्पीड ऑफ मोटरिस्ट while returning is what is 60 kilometers per hours. ठीक है, तो टाइम टेकन क्या हो गया उसका, x बाय 60 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सम क्या है, x अपॉन 54 प्लस x बाय 60 इज इक्वल टू 19/2. ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19/2. तो इसका एलसीएम होगा 540. तो ये होगा 10x प्लस 9x अपॉन 540 इज इक्वल टू 19/2. सो 19x अपॉन 540 is equal to 19/2. So x is equal to 19/2 multiplied by 540 upon 19. तो ये तो कैंसिल हो गया. सो ये होगा 270. सो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स is what, 270 kilometers. The distance between two stations is 300 kilometers. Two motorcyclists are simultaneously from these stations and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour faster than the other. If the distance between them after 2 hours is of the start is 34 kilometers, find the speed. मतलब कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर्स है. ठीक है, दोनों ने, एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ने यहाँ से स्टार्ट किया. एक की स्पीड है दूसरे से ज़्यादा. ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ 300 kilometers. ठीक है, सो लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर्स. तो स्पीड ऑफ सेकेंड साइक्लिस्ट इज x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर्स. लेकिन आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस इज x इंटू 2, तो मतलब 2x किलोमीटर्स. ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x प्लस 7 इंटू 2, तो मतलब 2x प्लस 14 किलोमीटर्स. ठीक है, अब जो सम में है उसमें 300 माइनस 2x प्लस 14 प्लस 2x इक्वल्स टू 34. So 300 minus 14 minus 4x is equal to 34. तो ये क्या होगा, 4x is equal to 300 minus 14 minus 34. तो क्या होगा, 4x is equal to 252. तो x is equal to 2 6 are 24 and 3 are so 63. ठीक है, तो फर्स्ट की स्पीड कितनी आई, 63 किलोमीटर पर आवर्स, और सेकंड की
70 kilometer per hour. So a boat travels 30 kilometers upstream in a river in the same period of time as it takes to travel 50 kilometers downstream. If the rate of the stream be 5 kilometer per hour, find the speed of the boat in the still water. So सबसे पहले तो let the speed of boat in still water is x kilometers per hour. ठीक है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x minus 5 kilometer per hours. So time taken is equal to 50 upon x plus 5, right? तो क्या होगा देखो, 50 upon x plus 5 is equal to 30 upon x minus 5, तो 5 upon x plus 5 is equal to 3 upon x minus 5, दोनों हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 15. सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 25, सो 2x इज इक्वल टू 40, तो x इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो स्पीड कितनी हुई, स्पीड इज इक्वल टू 20 kilometer per hours. Okay. The length of each of the equal sides of a isosceles triangle is 4 centimeter longer than the base. If the perimeter of the triangle is 62 centimeter, find the length of the sides of the triangle. ठीक है, देखिए पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लो, तो इक्वल साइड्स क्या हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल साइड्स हुई x प्लस 4, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर एक तो x होगा और x प्लस 4 दो बार होगा, सो 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर है 62, तो ये होगा x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू वॉट 62, तो ये 3x इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो 3x इज इक्वल टू 54, सो x इज इक्वल टू वॉट 18 सेंटीमीटर, ओके। और लेंथ क्या होगी, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और लेंथ इज़ नथिंग बट x प्लस 4, मतलब कि 18 प्लस 4 मतलब कि 22 सेंटीमीटर, राइट। A certain number of candidates appeared for an examination in which 1/5 of the whole plus 16 secured first division, 1/4 plus 15 secured second, 25 16 candidates failed, the total number of candidates appeared, ठीक है। देखिए तो let the total number of candidates appeared be x, candidates be x, तो number of candidates first division is what 1/5x plus 16, फिर number of candidates required second division is 1/4 of x plus 15,
and number of candidates acquired third division is 1/4x minus 25, रिमेनिंग 60 वर फील्ड। ठीक है, तो मतलब क्या होगा देखिए 1/5x प्लस 16 प्लस 1/4x प्लस 15 प्लस 1/4x माइनस 25 प्लस 60 इक्वल्स टू क्या होगा x, राइट। तो यहाँ पे देखिए x/5 प्लस x/4 प्लस x/4 प्लस 31 माइनस 25 प्लस 60 इज इक्वल टू x। तो ये होगा 4x प्लस 5x होल अपॉन 20 इक्वल्स टू x माइनस 66। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 14x/60 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 66। सो 14x माइनस 20x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 66। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 6x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 66। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो x इक्वल्स टू 66 इंटू 20 डिवाइड बाई 6, तो ये 11 हो गया। सो x इक्वल्स टू व्हाट 220। तो मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं 220। Raman has 3 times as much money as Kamal. If Raman gives 750 to Kamal, then Kamal will have twice as much as left with Raman. How much had each originally? ठीक है, so let the Kamal has original money. ओरिजिनल मनी बी एक्स, तो रमन का कितना हुआ 3 टाइम्स, तो क्या होगा 3x, राइट। नाउ बाय गिवन कंडीशन देखने जाओ तो x प्लस 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 750। सो x प्लस 750 इज इक्वल टू 6x माइनस 1500। So x minus 6x is equal to minus 1500 minus 750। ठीक है, तो minus 5x is equal to minus 2250। तो क्या होगा ये 5x is equal to 2250। So x is equal to 2250 divide by 5। So x is equal to 450। ठीक है, अब कमल का क्या होगा। सो कमल का तो 450 है, ठीक है, और रमन का 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 450 विच इज इक्वल टू 1350। सो द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर दिस, फाइंड द रेशियो। ओके, सो लेट द एंगल्स बी, बहुत ही ईजी है ये। लेट द एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो क्या होगा 2 इंटू 20 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री एंड 4 इंटू 20 डिग्री। ठीक है, सो इट्स 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ओके, a certain number of men can finish a piece of work in 50 days. If there are 7 more men, the work can be completed 10 days earlier. मतलब देखो इसके अंदर है ना सारे पैटर्न्स के सम्स आ गए, सारे पैटर्न्स के, वर्क टाइम का आ गया, ठीक है, एजीज का आ गया, सारे स्पीड के आ गए सम्स। So let the number of original men be x, तो x means 1 day वर्क कितना होगा
1/50, तो x + 7 means 1 day work will be 1/50 - 10 which is equal to 1/40. सो सबसे पहले पहला केस देखते हैं. means 1 day work इज इक्वल टू क्या है, ये 1/50x है, ठीक है. और सेकंड में ये फर्स्ट वाला, ठीक है. सेकंड में क्या है, 1 means 1 day is 1/40 into x plus 7. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/50x is equal to 1/40 into x plus 7. So 40x plus 280 is equal to 50x. ठीक है, तो क्या होगा, 10x is equal to 280, तो x equals to 28. ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यूज कितने हैं, 28. Divide 600 into 2 parts such that 40% of one exceeds 60% of the other by 120. मतलब देखो टोटल क्या है, टोटल है 600, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट bx, तो सेकेंड पार्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली 600 माइनस x हुआ. तो अकॉर्डिंग टू सम क्या है कि 40% ऑफ x माइनस 60% ऑफ 60 माइनस x इज इक्वल टू वॉट, 120. ठीक है, तो ये क्या होगा, x इंटू 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 60 इंटू 60 माइनस x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू वॉट, 120. राइट. तो ये देखिए ये क्या कैंसिल, तो ये 2x/5 माइनस ये और ये कैंसिल, तो 3 इंटू 60 माइनस x अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 120. ठीक है, तो इसको अब ब्रैकेट ओपन करो, तो 2x/5 माइनस 180 प्लस 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 120. तो 5x 5 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 480. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 480 होगा, सो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 120 होगा. मैन इज पेड 150 फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड इज फाइंड 50 फॉर ईच ही इज एब्सेंट. In a month of 30 days, he earned 2100 rupees. For how many days did he remain absent? चलिए easy है ये. So let the number of days he remains absent. Let number of absent day be x. ठीक है, तो देखिए 150 इंटू 30 माइनस x माइनस 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2100. तो ये होगा 4500 माइनस 150x माइनस 50x इज इक्वल टू 2100. सो 4500 माइनस 200x इज इक्वल टू 2100. So 200x is equal to 4500 minus 210. So 200x is equal to 0 0, ये 4 और ये 2. ठीक है, तो x is equal to 2400 अपॉन 200. तो ये 2 0, ये 2 0. सो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 12. सो कितने दिन एब्सेंट हुआ, 12 डेज. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और अब मैं नया चैप्टर लूँगी. सो मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.